Assalamualaikum everybody. Welcome to Between the Lines. I'm Abia Bukhari and today with me I have Sovia Naseem, who is also known as Sovia Fakhar. Thank you for joining in, Sovia. Thank you so much, Tina, for having me here. Sobi, the book that we're going to talk about today is Sand in the Castle by Sabina Huck. And I not only think, but I believe that she is the voice of displacement, an author who talks more about the uncertainty of belonging and how she looks for roots in a place where there are no roots, right? And I remember she taught us in MPhil, but then she had asked a question which was like, what is literature all about? And we were asked to answer it, obviously. And by the end, she said the entire thing revolves around one question, and that is, who am I? So when I read her work one after the other, I came to this point that yes, she is after that existential question. And she too mentions it time and again using the local idiom, the Pakistani idiom, whereby uh, proving that yes, all of us in one way or the other are trying to find a balance. We're trying to take roots and we are uprooted, we are thrown off. But then again, we go on looking for roots. So, what do you think about the book? Okay, so as I was sharing with you that be as a reader, I am a sort of a very particular, choosy and a rude reader. Yes, I was sharing this thing with you. So at first, when I started reading it, I feel like okay, it will be just a typical kind of English story writing techniques. But no, as I told you earlier, that I feel like there should be some more particular term for it, as it is in Urdu, afsana the technique because afsanas are always open ended, you got no ends, and sometimes you don't understand even the plot that what has happened in your mind. In few stories, yes, there is a story still alive that seriously hit your heart. Okay, this was the whole thing, because this is the writing style in afsana also. If you have read Ismat Chugtai and Manto, yeah, so they wrote in some similar ways that it leaves you in some kind of uh that as a reader you want, I guess you want a closure, but we don't get it in Afsana. But never get it. Oh, the open ended genesis brings us to something, We're made to think and to imagine scenarios that are not there. And there are stories that are written against that. Okay, I'm going to ask Sabina Haq about them. Yet, what was she thinking about? Okay, exactly mind में था क्या Sophia? उस वक्त था क्या? And one more thing which I have noticed in first few stories, I guess first 4 or 5 stories, as a reader, I believe that extremes of everything is actually the cause of damaging the stories. Either it is extreme freedom after, in first story, the 19 years of abused married life. She got freedom, but in her freedom, maybe somewhere she got extremism. It's like she got extremist in that particular freedom phase. And eventually, that freedom, which was well earned, she deserved that freedom after. Who are you talking about? Are you talking about Sabine? Yes, The story, the first story. the first stories. How about we just skim through pages one after the other and discuss every story? Okay, so the first story is with the title From Boundaries to Boundaries. Trust Samba. This is the story where I felt that the extreme of everything, even if it is good, that will bring some damage to you or extreme damage to you. So who gets to decide the limit? I mean, something that would be a part of extreme to you wouldn't. This is the thing where we can debate that the thin lines. How we can get to know that this is the thin line of freedom. If I will cross it, it will cause me damage, even if it is well earned after But years. who defines the line? That's the question. Yeah, see the question. And there was that is where that who am I arises basically. The self awareness, because no one is going to tell you that this is the line. This is only you.
You gotta define, okay, so wait, are Sabine? Who's been in an abusive marriage, and when she was getting married to the guy, when the entire thing was being arranged for them, she was judged. The mother-in-law dominated, okay, looked down upon her. She was controlled in a house where basically she was objectified, right? Yes, objective. And this entire marriage culture is questioned, and it's the first story, right? And when you treat women as objects of evaluation, like, okay, इसका रंग ऐसा है, वो ऐसे दिखती है, इसके बाल ऐसे हैं, what are you trying to do? It's like women bringing women down. Yes, this is the thing. So it's not just about patriarchy in any case, right? So basically, in Samin's case, where she finally decides to escape and when she gets to Canada, जो उसको लगता है कि अच्छा it's a symbol of freedom, लेकिन वो चीज़ deliver नहीं कर पाता. Yes, Because there she finds an emotional escape. yes, Right? उसको जो space पहले नहीं मिली होती, वो उसको वहाँ पे हसीब की शक्ल में मिलती है. वो हंसी. Yes. So for a woman who has not had peace and was been through a lot, उसको closure चाहिए. So for her, this isn't sinning. ये कहते हैं कि ये has ऐसी थिंग, उसका फ्रीडम, उसको आई गेस कि उसका जो फ्रीडम था ना, उसे उसे खुद भी नहीं पता था कि वेयर आई एम गोइंग. क्योंकि जब स्टोरी एंड होती है तो उसका वो जो लॉजिकल ब्रेन है वो काम करना शुरू करता है. और अगर हम देखें तो जो जो उसका एस्केपिज्म था, उसने भी तो उसको उतना ही इमोशनल डैमेज दोबारा से कॉज कर दिया ना. No, she tries to find a foothold and tries to find an emotional bond ऐसी जगह पे जहाँ पे है ही नहीं. So for the timing उसको लगता है वो एक illusion है कि उसे लगता है कि मैं फ्री होने लगी हूँ लेकिन वो फ्री नहीं हो रही. It's just like getting away from one Yes, to one trap to another trap. वो इस तरह से देखिए, उसके लिए उस वक्त जो फ्रीडम की डेफिनेशन थी ना, वो हसीब था. जो मुझे लगा कि एज अ रीडर, और वाकई ही एज अ रीडर नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग भी अगर हम देखें ना, हम 19 साल 19 ईयर्स इज अ थिंग. यहाँ पे कैद नहीं रहे हो. 19 ईयर्स बाद कोई परिंदा भी आप उसे उड़ाना चाहोगे ना, तो वो पहले उड़ नहीं पाएगा. सर्टेनली वो भूल जाएगा कि हाउ टू फ्लाई. तो वो अप जो उसके स्काई था ना, अगर मैं इसको थोड़ा बिल्डअप पर कर लूँ कि उसका स्काई हसीब था, लेकिन वो गलत था और ये उसको भी नहीं पता था. Yeah, because why does she finds things in his cupboard? Yes. She then realizes कि उसने ट्रांसग्रेस तो किया है. But then again, उसका पास्ट है या मे बी वो हसीब का पास्ट नहीं, उसका प्रेजेंट ही है. उसका प्रेजेंट ना सीन के जब एंड पे जब उसकी डॉटर चली जाती है शायद छोड़ के, तो वो फिर कहती है कि ओके, अब वो हसीब ने ही रिप्लाइड टू हर के इट्स बीन अ ईयर दैट वी गॉट सेपरेटेड एंड ऑल दैट. बट वो कहती है कि जो मेडिसिन के ऊपर था दैट वाज ओनली अ वीक बिफोर. सो हियर द लॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन of logical and emotional brain is basically the spiritual intelligence, how it works, the balance. कि आपका लॉजिकल माइंड भी और आपका इमोशनल माइंड भी जब एक साथ काम करना शुरू करते हैं ना, और आपको पता है टू अचीव बैलेंस इज एन इल्यूजन. हम एज अ ह्यूमन बीइंग कभी बैलेंस्ड हो ही नहीं पाते. बस ये फाइट चलती रहेगी, लेकिन कंप्लीटली वो कहते हैं ना, एक सिंक में आ जाएंगे ये दोनों ब्रेन, ये कभी भी नहीं आएंगे. Now, because we as humans were thrown into this earth, right? And so we can never be satisfied. अब जब उसकी सबीन की इंस्टेबिलिटी उसकी डॉटर में एक तरह से ट्रांसफर होती है ऐसे she just leaves. So then Sabine is made to think कि अच्छा what now? Right? So there's this line that I would want to quote before we move to story Yeah. number 2. Another question which comes in my mind कि मुझे ये हुआ कि मतलब जो उसकी डॉटर थी जाना, maybe she forgot or she was not able to acknowledge the struggle of her mother. कि 19 years की एक abusive मैरिज से निकलने के लिए just think for a while कि जब वो बंदी उसका पासपोर्ट, जुनैद का पासपोर्ट उसने उठा लिया था ना, कि वो उसके पीछे भी जल्दी नहीं आ सकते. जब वो सारी प्लान अपने माइंड में इसके चल रहा था, जस्ट थिंक फॉर अ वाइल कि आपको पता हो कि आप पकड़े जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी आप उस थोड़ी सिचुएशन से गुजरते हैं. मुझे ये भी लगा कि ज़ैनब ने उस अपनी मदर की उस
स्ट्रगल को, उस पेन को एक्नॉलेज करने में शायद फेल हुई, मे बी। Obviously, as kids, you cannot discern certain things. You know, even as women, I think, Sylvia, we do not pass through certain types of, fields. We cannot really imagine what are the. मीन्स पता ही वो क्यों था, क्योंकि हमारे यहाँ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि women as a mother are so much busy in pleasing the so-called Sartaj कि वो जो उनका gap of communication बच्चों से बनना शुरू हो जाता है. So that is learned to helplessness, where you stay in abusive marriages just to have your kids psychologically disturbed, right? और आप बस डेली बेसिस की एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन और डेली बेसिस की स्कॉल्टिंग से बचने के लिए इतना ज़्यादा प्री ऑक्युपाइड हो जाती है कि आप भूल जाते हैं हम बच्चों से. नहीं, बट स्वाबिया ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो जो उसकी बेटी है सबीन की, वो पहले से ही घर के हालात देख के परेशान हो और वो एक पॉइंट उसके लिए था कि व्हेन शी डिसाइडेड टू लीव, जब उसे आगे हो गया कि हाँ माय मदर थिंक्स शी इज गोना एस्केप दिस, बट नो शी वॉन्ट, सो शी जस्ट स्टेप्स आउट, शी लीव्स. पर वैसे भी साइकोलॉजिकली जो एलिडेस चाइल्ड की मिडिल चाइल्ड, वो जो सबसे छोटा बच्चा होता है, उनके थिंकिंग प्रोसेस वो नेचुरल होते हैं. Okay, so Sabine doesn't find your own. या Anyway. And story number 2 is Bhangra Princess. ओके, दिस स्टोरी एक्चुअली व्हाट आई फील, एक बहुत प्यारी बच्ची जिसने डांस, यस आई लव द सिंपल ऑफ डांस बिकॉज पर्सनली आई लव डांसिंग टू. मुझे आई नो हाउ इट फील्स के जो डांस है वो आपको किस तरह का प्लेयर, और वाकई दिस इज अ थिंग. बट जो अचानक लोड शेडिंग, मतलब पर आप कैन यू इमेजिन द आयरनी ऑफ द सिचुएशन के डॉक्टर ने वेंटिलेशन मशीन मिल गई, उसको सब कुछ हो गया, उस बच्ची ने सरवाइव कर लिया, उस डॉक्टर ने इसके लिए फाइट किया, अपने वापस आ गई अपने गांव में खुश है. अच्छा, इवन देन शी वाज हैप्पी, शी वाज डांसिंग, एटलीस्ट हर सोल वाज डांसिंग. लोड शेडिंग. Yeah. So for the people who are watching and listening, we need to give the entire summary first so that they know what we're talking about. They don't have to read the book. That's the main point, right? So this story is about a girl, Anila, whose father, Baba Bole, plays dhol, right? On her against. But this girl, Anila, has music within her. She's born into rhythm. She has her culture within her, but she cannot perform in front of men. That idea of, so basically it's like, something that has to exist within boundaries. But then again, she's always dancing, she's full of life, but then she falls. And it's not a dramatic fall. It's like a normal thing that has happened. वो बस slip हो जाती है, slip. और फिर she is bedridden. ICU में है वो. फिर ventilator arrange कर रहे हैं और फिर finally charity से ventilator तो arrange हो जाता है. लेकिन फिर they decide to take her home. The portable पोर्टेबल है, तो वो भी अरेंज हो जाते हैं, वो भी अरेंज हो जाता है. फिर वो फाइनली अपने गांव चले जाते हैं. अभी जब वो गांव जाती है तो वहां पे जी उन्हें पता लगता है कि जो डॉक्टर मस वो जी विजिट करेंगे. जब वो विजिट करेंगे तो जी फिर उनको वो ढोल बजा के भी दिखाया, उनका प्रॉपर जो भी एक हिस्सा होता है वो होता है. एंड द थिंग अबाउट सरीना इज दैट शी राइट्स इन अ वे कि लगता है शी इज रूटेड इन ट्रेडिशन. और कैसे लगता है उनको कल्चर ऐसा बहुत होता है. व्हेन शी टॉक्स अबाउट बलूचिस्तान तो लगता है हाँ शी इज बिन देयर. जब व्हेन शी टॉक्स अबाउट दिस सर्टेन गांव तो लगता है शी इज बिन देयर. यस, हैट्स ऑफ टू द एक्सपीरियंस. आई डोंट नो कि मतलब मैं वाकई उनसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में शी बीन थ्रू एक्चुअली थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस, मतलब वो इतना रियलिस्टिक अप्रोच ली थी. आप देखें एक बंदे की जिंदगी का वेंटिलेटर कहाँ से डिसाइड हो रहा है, एलीट क्लास की किटी पार्टी सिसो पीस At the mercy of his people anyway. यस जैसे ऐसा थी. हालांकि देखें अगर इस स्टोरी को देखा जाए ना तो बहुत ही सिंपल प्लॉट है, मतलब कंपैरेटिवली टू अदर स्टोरीज मुझे बहुत सिंपल प्लॉट लगा था, लीनियर प्लॉट लगा था. ठीक है, और बहुत बाकी कोई ट्रैजिक फीलिंग्स भी नहीं आई पर्टिकुलरली. लेकिन अगर हम एक सिंपल स्टोरी के इसके डीप स्ट्रक्चर्स को देखें तो क्लासिज्म बहुत ऑब्वियस है कि मतलब, और दूसरी सबसे बड़ी बात के एंड पे जो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं एक बंदे की जान चली गई.
हाँ, द लाइट गोज़ ऑन, वो कहते हैं कि अनीला अनीला दे शाउट, और फिर पता लगता है कि ऑब्वियसली वेल लेटर ने कैसे चलना था जब लाइट नहीं है, शी डाइज। सो एंड में बहुत अच्छा सीन है। हर फादर एक द ड्रम, और उन्हें वो ऐसे लगता है कि they are replacing the machine with music, as this culture itself could breathe life back into her. So that very thing, जो आप जैसे सॉरी साथ साथ है मेरे कुछ स्टोरी, सो व्हेन यू रीड वन स्टोरी ऐसा लगता है आप उसकी दुनिया में चले गए पूरे ना, फिर यू एंड रीडिंग, फिर आप दूसरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, तो लगता है कि पूरा वर्ल्ड एक वो आप कंस्ट्रक्ट कर देती हैं आपके लिए, कि वो आप अब जैसे ये पंजाब का कल्चर भांगना ये वो, सो आप एग्जैक्टली उसमें चले जाते हो कि अच्छा ऐसा हो रहा होगा, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने होंगे। सो बहुत वंडरफुल। In a written expression में one more thing which I really acknowledge and admire this thing. This seems to be up. I don't know okay, what should be the more technical term for it. This seems to be a Pakistani English. Like you don't have to put a dictionary by yourself. या आपको बताए मतलब अगर I don't know कि मुझे इस तरह से जो if we look into the reluctant fundamentalist author, वो ना एक मोहसिन हामिद, वो आपको एक अमेरिकन इंग्लिश का स्टाइल मिलेगा. दिस इज द वे वी एक्चुअली टॉक हियर इन पाकिस्तान. ये पाकिस्तानी इंग्लिश है. This is about Pakistan. This is the Pakistani idiom that Tawfiq Rafat talked about, that we need to have a local idiom whereby people understand कि people का दरख्त क्या है. So for अंग्रेज to understand this very thing, उनके लिए होगा कि यार ये क्या है people का दरख्त, and they wouldn't even find it there. कि उनको उर्दू डिक्शनरी में जाना पड़ेगा ये ढूंढने के लिए. और ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि जो अच्छा इनके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है ना, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है. या एक सिंपल एक आम बंदा जो कि चलो ठीक है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश की हाउन है और रीडर है, ही और शी कैन रीड इट, डाइजेस्ट कर लेगा आसानी से. and you would actually know about cultures. Yes, और सबसे once I read somewhere कि one of the best story writing technique is this कि जब आपका रीडर ना विजुलाइज कर सके एक एक चीज को, and little you can imagine the Baba Bulle and those things. और ये इनकी हर स्टोरी में थी. True. Okay, so the third story is Burqa. It made me go, Why? the last ending of this story. This is the only story in this whole book. It seriously made me cry after reading this story. I put it aside. I took a break. I tell the story, right? Or you would do the honors. No, Please, no home. Okay, so when this story opens up, mother tells Gulbano that okay, here you have a burqa. Here from now on, you're gonna live in it. yes, right, live in it. And she questions like every other girl कि मुझे क्यों जरूरत है ये पहनने की. तो माँ कहती है कि this would protect you from animals. Animals, Yes. And then we're made to uh, think about the landlords who don't want girls educated, who want the slave system to go on and on. क्योंकि अगर सब एजुकेटेड होंगे तो फिर काम कौन करेगा ना. फिर अगर ये लोग इनकी जिंदगी में बेहतरी आ जाएगी, फिर वो तो बिल्कुल दे वुडंट सर्व अस एनीवे. सो या दे डोंट वांट पीपल टू गेट एजुकेटेड. और ये मिडिल स्कूल में है, 7th में है, और 8th में उसका स्कूल खत्म हो जाएगा, और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि वो आगे नहीं पढ़ पाई. ठीक है. अब होता ये है कि उसके वालिद साहब घर में तो तालिबान को लाते हैं. ठीक है. तो कहीं वो उसको देख लेता है, वो बूढ़ा बंदा होता है एक तरह से, लेकिन वो कहता है कि मैं इससे शादी करूँगा. फिर वो इससे पूछते भी नहीं है इसके पेरेंट्स, और इसकी शादी तय हो जाती है. वो कहते हैं वो रेडी है शादी के लिए इस फ्राइडे को, या आई थिंक कोई और डे, लेकिन वो रेडी है. अब ये डिसाइड करती है उसी बुरका में जिस बुरका ने से बचाना था, वही बुरका पहन के वो निकलती है कि हाँ ये जो लैंडलॉर्ड्स की गाड़ी आती हैं इसके आगे मैं जाके खड़ी हो जाऊंगी, जो ये जाएंगी मुझे आज़ादी मिल जाएगी. सो दिस वॉज हर वे ऑफ गेटिंग टू द सिटी एंड गेटिंग आउट ऑफ दिस bad world she thought she was in. And it turns out कि एकदम से उसको आवाज़ें आती हैं कि भाई इसकी हियरिंग है,
उसको समझ नहीं आती मैंने बुर्का पहना हुआ था तो अब मेरे पर ये जूट है, ज़ाहिर है वो बोरी डाल रही है सुबह की उसके ऊपर। तो फिर उसे ये भी लगता है कि अच्छा वो ट्रंक में है, समझ नहीं आ रही उसको क्या है। और एकदम से वो सीन आता है कि उसको उस स्क्वायर में ले जाते हैं जहाँ पे स्टोनिंग होनी स्टोनिंग, और फिर फाइनली उसको पत्थर मारते हैं। आई थिंक होलिस्टिकली उनकी ये वायलेंस बिल्कुल जस्टिफाइड फिर हो जाती है ना, कि सब बोल रहे हैं कि ठीक है इसको मारो पत्थर और ये करो वो करो, और फाइनली वो बुरके के अंदर ही बस एक तरह से बोरी में कुछ पड़ा होता है खूनो खून, और उसकी डेथ हो जाती है। Why I can guarantee you this is actually happening in Pakistan. Yeah, I have a live experience of this. Live experience in a sense, I won't name anything, any institute or any. Okay, I was having some clashy female colleague. अच्छा, Yes. And it's been only a 1.5 month back. She she called me out. Can I come to your place? Can I? Because I can do it in this situation. However moralistic you are, whatever being a human, how can you can imagine that you will get married within 3 or 4 days or 3 years, man? And she literally said whole I was feeling like while this story that she is not this girl in the story, she is my colleague. This is actually happening in Pakistan still. This is and my father was also posted in Sindh, Hyderabad, and Badera culture. You cannot even imagine. I have seen with my own open eyes that 3 4 wives are sitting together and they have no okay the पसंद आ गई यहाँ से है, पसंद आ गई वहाँ से आ गया. One of the older, like you may say the eldest wife narrated the whole story to my mother. जहाँ से पसंद आई उठा ली. so how is it that the body becomes a site to contain somebody else's honor? I mean, what is this honor culture about? The answer is in the question. See, why do I have to trap because of the wolves? Wolves have to be trapped. Yeah, that's the It is very simple. Second thing which I noticed. Okay, they are Bharatman, okay, Yeah. egoistic. They are the bread earners according, okay, get into the, like, if they are truly like true Islamic teachings, that they are the bread earners, female is only for homemaking. Yes, only for homemaking, but there are also the 12 ayat after this ayat in Surah Bakra that men are superior over women. Then there are 12 responsibilities ayat also which are okay, it will become somehow controversial, but yes, there are 12 ayahs in which responsibilities of the man on what basis he is superior. We I don't know. Before reading these 12 ayahs in Surah Bakra, मेरे पास knowledge नहीं था. मुझे नहीं पता था कि why men are superior. Why men are superior? There are with great power comes the great responsibility. Spider-Man, yes. So he is married man. But this paragraph particularly, it was like the woman is the lady, the wife is going for bread earning. She is stitching something like this, and she is bringing money for like meals and all that stuff. But there is the ego of this man, and see the writer. Um, she has put this thing into words very smartly. yeah. My father intentionally ignored. मतलब उसकी हालत जाग रही थी, लेकिन उसे पता था यार 15 years के लिए ऐसे यार आ रहा है. नहीं ना सौबिया, उसकी गलती क्या है गुलबानो की? दैट्स द थिंग। तो वही बात है कि द वर्ल्ड जिसमें पावर रूल करती है, ठीक है, लेकिन उसमें इनसेंस विषय करते हैं ना मैन अपनी जहाँ बात यहाँ पे पावर की ये भी है कि शायद उन इलाकों का आदमी इतना चालाक और होशियार है कि उसे पता है कि जहाँ मैंने डोमिनेट होना है, जहाँ मैंने बताना है कि मैं मर्द हूँ घर का, वो बता देगा, लेकिन जहाँ उसका नहीं दिल करेगा वो नहीं बताएगा.
और वहाँ की औरत इतनी अनअवेयर है कि उसे नहीं पता चलेगा। Then what way is this all justified? स्ट्रक्चर्स है अना पावरफुल हो जाते हैं जहाँ उनको लगता है कि ओके यहाँ पावरफुल होने से हमारी बात बन रही शू ट्रू ट्रू। और इस पैराग्राफ में दिस इज अ वेरी डीप डाउन सीक्रेट ऑफ दैट कल्चर ऑल्सो। Yeah, that is. Okay, so story number 4 is Woman the Facade. It is about a girl, Sarah, who is packing, and her parents tell her that yes, you're going home now. Right? So basically, from one home, she is going to another that is truly hers, right? And when she gets there, she's been told that you're gonna live near the Hudson River, and she has a whole world imagined in her mind because this is how girls are, right? And her husband stays busy all the time, right? And he has no time. And when she talks to her parents, they're like, have a child. हो जाओ भी set. You know, जिस तरह parents कहते हैं, ऐसा ये कर लो, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. So she begins thinking, कि how will this even happen, since he's busy all the time and all of that. And it turns out that one day, that very guy, Tariq, takes her to the place he works. Some kind of, yeah, so it's a dark lake where there are disturbing things, drunk people, and she's made to think of all the times he had told her that he was busy. He was busy. So, and then she's given a drink and she doesn't remember anything when she wakes up. And when she wakes up, she knows that she needs to run from this right place. Yes. And she goes on looking for the bank account, but she realizes that he has already taken the money away. And she recalls the times when her mother-in-law would get new jewelry, right? And it turns out that yes, when she was about to get married, her mother-in-law was looking for a girl who had a visa, who was already a US, resident or something like. And so basically, this marriage was never built on companionship. This was never about it. It was like a constructed financial arrangement, right? It's la scala. And this too is part of our local reality. Yes. Right? And the entire thing cannot be understood by people who do not live here. For somebody who has been through this or who has heard somebody else go through this would know कि हाँ ऐसा होता है. So this is like a transaction और एक economics exchange है I think कि बस you get somebody for your betterment or for your own good और Sarah leaves her country believing she is entering a home लेकिन हर दरवाजा जो उस पर खुल रहा है वो उसको एक वर्स कंडीशन हम करके इसके आगे लेके जा रहे हैं ना. अच्छा आफ्टर रीडिंग द स्टोरी आई गॉट अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि जब मतलब पेरेंट्स दे जस्ट डिसाइड कि ये लड़का है ये सब कुछ है हाउ मच ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन ऑन द पार्ट्स ऑफ द पेरेंट्स वो वे में इन्वेस्टिगेशन करने पेरेंट्स जितने कर सकते हैं when I was to be married. मेरे माइंड में ना ये क्वेश्चन बहुत क्लिक किया क्योंकि आप पता है ये स्कैम्स अगर हम लोकल टीवी को फिर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से जो एक्चुअल इश्यूज हैं वो भी अब एक्चुअल इश्यूज नहीं लगते लेकिन ये स्कैम्स हो रहे हैं आई गेस कोई 2 और 3 मंथ्स पहले मैंने कोई एक रिपोर्ट सुनी कि कोई डॉक्टर थी शी गॉट मैरिड यही सारा सीन था कि बहुत अलीट फैमिली दिखाई गई और ये वो अब वो भी बंदी मैं इसे इसलिए क्योंकि वो भी इसी प्रोसेस से गुजरी कि शी वाज थिंकिंग कि सारी फैमिली सुबह-सुबह चली जाती है फिर आती है एंड लेटर ऑन के पता चला कि दे वर एक्चुअली बेगर्स ओह माय और यस दिस एक्चुअली हैपन हियर मे बी कराची का ये साहब चिल्ले भी ये स्टोरी सुनी. लेकिन इसका मतलब है कि हो रहा है ना और वही बात कि इतने छोटे-छोटे इश्यूज की वजह से जो एक्चुअल इश्यूज हैं वो भी नहीं हम कर पाते उनको लेकिन फिर हाउ मच ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स
कितना कर लें, मतलब पेरेंट्स जो एक फाइनेंशियली स्टेबल होता है, बाहर रह रहा है, इससे ज़्यादा अपने पेरेंट्स अच्छा फैमिली अगर जानती भी है, अगर हम फर्स्ट स्टोरी में देखें तो वहाँ पे मतलब बट वो फॉर द बिगेस्ट रेड फ्लैग इज, अच्छा बाहर रहता है लड़का, बाहर पढ़ा लिखा है, लेकिन शादी उसने पाकिस्तानी लड़की से ही करनी है। भाई क्यों करनी है? ये भी क्यों सर है। और आपको पता है कि 110 पर पता है दे बचा हुआ है बिकॉज माय हस्बैंड इज ऑन लिविका अकॉर्ड। इसका मैं बताऊं, मुझे आपके नाले जो मुझे इसका आंसर दिखा कि व्हाई दे वांट पाकिस्तानी फीमेल, इतना सबको जीने के बाद भी होल्ड कैसे करेंगे। यस, द नेगेटिव होल्ड नहीं, देखें जो रूट्स है ना, चाहे कोई 15 साल बाहर है, चाहे कोई 20 साल बाहर है, अब मतलब इवन माय ब्रदर, अब देखिए हमारे यहाँ ना मेल्स के अंदर से मुझे लगता है कि ये चीज़ कभी चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा लिखा हो, जितना मर्जी उसका विजन बन जाए, कहीं ना कहीं शायद ये फितरत में ही है। बोल्ड इट्स नॉट ओनली अ नेगेटिव होल्ड और नेगेटिव कमांड, लेकिन है, चाहे बहुत पॉजिटिव भी है पर है। So I know somebody who's highly educated, and for some reason the entire family had to move to a village, which was their buying घर. So कुछ पीरियड के लिए उन्हें उधर जाना. So when they were there, तो उसका रिश्ता हुआ, शादी हुई, सारा कुछ हो गया. तो जब obviously she was an educated woman who was aware of herself and of her surroundings, and she didn't want to be abused physically or mentally anyway. तो she got to hear कि मैंने तो इसलिए गाँव की लड़की से शादी की थी, ये मेरे से दब के रही। यस, ये और पता है दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ये है। But there's nothing that we can do to, end this. We can only teach our sons. लेकिन वो भी किसी हद तक ही सीखेंगे, because there's this thing that runs in the blood. यस, और पता है क्या, देखिए इट इज़ नॉट ओनली अबाउट आवर अपब्रिंगिंग टुवर्ड्स आवर मेल जनरेशन जो आगे आ रही हैं। बात यह है कि हमारी अपब्रिंगिंग और फिर जो दूसरी जनरेशन है, सिर्फ घर ने तो एक मेल की ग्रोथ में रोल प्ले नहीं ना करना। वो जिस स्कूल में जा रहा है, वो जिन टीचर्स जिसे पढ़ रहा है, वो जिस सर्कमस्टांसिस में रह रहा है, वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो भी बहुत असर करती है। अब मतलब मैं आपको बात बताऊँ, आई वॉन्ट नेम द थिंग्स और आई वॉन्ट नेम द प्लेसेस, बट मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत पढ़े लिखे घरानों में भी जहाँ पे ग्रूमिंग को, तरबियत को बहुत ज़्यादा रखा जाता है, कंसीडर किया जाता है और पढ़ाया भी जा रहा है मेल्स को फीमेल्स को इक्वली, लेकिन फिर भी अननोइंगली अनकॉन्शियसली वहाँ पे मेल्स के माइंड में ये है दैट वी विल गेट मैरिड टू अ ब्यूटीफुल वुमन। एक आपको 7वीं 8वीं के बच्चों को भी उसका एक वन ऑफ द बोल मतलब बहुत फनी सी स्टोरी है, पर वह थ्रू माय So let's just stick to the main text ना, Sophia. So this is a reality कि जो आपको दिखता है वो उस पे, जिस तरह इसमें स्टोरी में जो मैरिज कल्चर वाली सारी बात है वो यही है ना, कि उन्हें प्यारी लड़की चाहिए, रंग हो रहा हो, ये हाइट इतनी हो, बाल ऐसे हो, यही कहानी है पाकिस्तानी मैरिज। बिल्कुल ऐसा ही कि जब मुझे मुझे लगता है कि जब आपको कोई क्या उस लड़की को करैक्टर या उसको लड़की को ये सोचना चाहिए, इस तरफ द सेकंड क्वेश्चन व्हिच कम्स इन माय माइंड कि व्हेन समबडी इज लुकिंग इनटू द थिंग्स, हाँ इसका वीज़ा भी है, इसके पास सब कुछ है, तो क्या औरत के माइंड में ये बात क्लिक नहीं करनी चाहिए कि वेयर वेयर इज मी, लाइक मैं कहाँ हूँ, लेकिन मेरे फायदे हैं। यही तो बात है कि इन्हीं चीजों के साथ दुनिया चलती है। है ना। हाँ, यही मसला है। And even if you are highly educated, you belong to a well-to-do family, you come from a balanced background, right? Or you've never had to depend on anybody else, you get to hear, यार तुम कौन, सो बेसिकली वो दूसरे का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो आपको किसी ऐसे उसमें डाल देते हैं कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। यू गो ऑन लुकिंग फॉर मीनिंग, यू ट्राई टू फाइंड गुडनेस विद इन यू, आप भूल जाते हो आप क्या हो। पीपल डू दिस, एवरीबडी डज दिस। आई मीन, जैसे सेल्फ है, द मोमेंट द अदर वुड अराइव, तो वो हो जाएगा सेल्फ एंड द अदर वाला कि अच्छा उसका ये मेरा ये।
embarrassment the other person वो वाली चीज. ये वो इस स्टोरी के वो मैं लेकिन ये तो मेरे मतलब एज अ रीडर मेरे माइंड में एक बात थी कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू हर, मतलब क्या उसका ऑर्गन निकाल गया था? मतलब ये मेरे लिए ना थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये बता के वो Oh my god. यस या दिस इज द थिंग, मतलब भाई बीइंग अ रीडर मैंने तो एक प्लॉट को एंड देना कि उसके साथ टेक्निकली हुआ क्या, क्योंकि अच्छा पहले लगता है कुछ और हुआ, फिर लगता है कुछ और हुआ, लेकिन एंड पे जो एंडिंग लाइंस आती हैं व्हेन शी वाज बेसिकली टेलिंग अबाउट द हेवीनेस ऑफ हर लेग्स, तो देन आई कम टू कंक्लूजन कि इसका कोई ऑर्गन निकाले ये My god. सीरियसली। वरना मुझे ये लगा कि वो जो समथिंग समथिंग एल्स वाली थॉट्स थी वो जैसे जैसे मतलब आई वाज गेटिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी। अच्छा आपको एक बात बताऊं, मैं बीइंग अ रीडर मैं ना मुझे सस्पेंस थ्रिलर बहुत पसंद है। इवन कि सबीन की स्टोरी को भी मैंने थ्रिलिंग एंड दिया, लेकिन वो मैं एंड पे डिस्कस कर रही कि अगर मैं उसके ऊपर मूवी बनाऊँ और उसको रिवेंज मूवी बनाऊँ तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी। अच्छा इस पे इस स्टोरी में मैं जैसे जैसे मूव कर रही थी ना कि वो अच्छा मेरे लिए ना जब थ्रिलिंग और सस्पेंस स्टार्ट हो जाता है ना तो मुझे मेरे लिए बहुत प्रिडिक्टेबल इसलिए भी है क्योंकि मैंने बहुत देखी है सस्पेंस और थ्रिलिंग मूवीज। अब मुझे पता चल गया था कि द मोमेंट जब उसका हस्बैंड उसके साथ अच्छा हुआ एकदम एंड ही वॉज टेकिंग हर टू सम प्लेस, मुझे पता चल गया ओके दिस इज द पॉइंट जहाँ में अब उस बंदे की ट्रू नेचर रिवील होने वाली है। और मुझे तब भी पता चल गया था कि ही इज़ नॉट एट होम एट नाइट्स, समथिंग इज फिशी। तब मुझे क्लिक कर गया कि लेकिन अब जैसे जैसे वो बताती जा रही थी ना कि मेरे साथ ये हुआ, पहले मुझे लगा अच्छा ये हुआ होगा, फिर मुझे लगा अच्छा ये हुआ होगा, लेकिन एंड पे जब एक्चुअली उसने वो ऑपरेशन थिएटर लाइट वाइट ब्राइट लाइट उसके ऊपर थी एंड द हेवीनेस ऑफ हर लेग्स, दिस मेक्स मी कंक्लूड कि उसका ऑर्गेनिका। Okay. Okay, so obvious, so next story is still alive. It's about Babar and Sheila. इट इज स्टिल अलाइव, ओके येरा। So yeah, uh, Babar is in Obama, right? And we see a woman around him with the name Sheila, right? And we have his parents as well. लेकिन बातों से पता लगता है कि बाबर और शैला लिव इन रिलेशनशिप में थे. Sheila is a model, and because of being a model, she was never accepted by his mother, and they never got married. But now उसकी बाबर की अम्मी ने मन्नत मानी है कि अगर ये ठीक होगा तो मैं इनकी शादी कर. सो अब बाबर एक ऐसी स्टेट में है, इन बिटवीननेस है उसकी स्टेट में कि अपनी बॉडी में ही इज नॉट एट होम. यस, इट्स लाइक हिज स्टेट ऑफ माइंड इज सच कि वो हर जगह फैल रही है उसकी सोल एक तरह. उसका माइंड लिंगर कर रहा है, वो रियलिटी को इमेजिनेशन से मिक्स कर रहा है, और वो हर एक की बात सुन पा रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर सक रहा. सो ऐसे में फिर ये होता है कि उसको एकदम से लगता है कि यस द एंडिंग। यार जहाँ ये gotten and yeah, basically he was being cheated. Yeah. So, oh, how I wish he had come out of the coma once. I could have told him about us, Kabir. I wouldn't feel so guilty then. Shella was talking to someone in the room, someone standing far away, perhaps in the corridor. And we see Babar leaving the world then. So, what do you think about the story? To me, it seems कि maybe बाबर की कंडीशन ऐसी है कि वो खुद ही वो सिनेरियो क्रिएट कर रहा है जो शायद उसके को डर था कि ऐसे हो सकता है, या शायद असल में ही वाज बीइंग चीटेड ऑन. सो व्हाट आर योर थॉट्स? अबाउट दिस अच्छा मुझे इस स्टोरी में आके सबसे अच्छी बात ही लगी ओके फाइनली कि मतलब वो एक होता है ना कि गुडी बुडी पिक्चर ऑफ ओनली फीमेल्स एंड बैड बैड पिक्चर ऑफ ओनली मेल्स, मुझे इस अब इस स्टोरी से मुझे लगा कि ओके शी इज़ नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली फीमेल्स बीइंग द गुड और विक्टिमाइज्ड। यहाँ पे ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। हालांकि जब ये इस वाली स्टोरी पे आके मुझे पता चला कि ठीक है एक वो एंटी फेमिनिज्म वाले फैक्टर्स हैं कि ठीक है भाई ह्यूमन नेचर है बेसिकली। यहाँ सबसे अच्छी बात इस स्टोरी पे आके लगी कि जो होमो फाइंडिंग है ना वो सिर्फ फीमेल्स नहीं कर रहे, वो मेल्स भी कर रहे हैं इक्वली।
अब यहाँ पे अ, वो जो होम फाइंडिंग, अच्छा मे बी दिस इज अबाउट द स्पिरिचुअल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दिस वाज द स्टोरी के जो कि मुझे बहुत ही प्रिडिक्टेबल लगी, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ हॉलीवुड मूवीज जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई हैं। और अच्छा, यहाँ पे लेकिन एक चीज़ एंडेलिसा से वेग है कि अगर एक शख्स कोमा में है ना, तो और अनकॉन्शियस होने में और कोमा होने में थोड़ी सा थीम लाइन है, डिफरेंस है, जो कि इसमें राइटर ने मिलाया भी है हमें। और फिर दूसरी बात भी कि क्या एक्चुअली ही डाइज। अच्छा, मेरे हमारे में एक क्वेश्चन था कि क्या पता उसकी रूह सब कुछ देख रही हो। मुझे भी पहले ये लगा कि उसकी रूह है जो देख रही है, लेकिन वहां पे जब बात होती है ना कि अच्छा अब वो जा रहा है कॉमा में, अब वो ज्यादा डीपर स्टेज में जा रहा है, तो फिर लगता है कि हाँ अभी कुछ ना कुछ था, वो वेंटिलेटर पे है या जो भी है, लेकिन नाउ ही हैज लेफ्ट द वर्ल्ड। तो इसमें ट्विस्टिंग पॉइंट, द प्लस एंड गुड ट्विस्टिंग पॉइंट शुरू शुरू में लग रहा होता है कि वो एक्चुअली ही हील्ड। हाँ, वो मिडिल ऑफ दिस आर्टिस्ट वंडरफुली सीरीनाज डा वो जब डॉक्टर शूज जब स्टार्टिंग सेटिंग जहाँ पे हुई है, तो डॉक्टर जब वो बार कर रहा था, वो इट सीम्स लाइक कि बेसिकली ही हील्ड। अनकन्वेंशनल वे ऑफ स्टोरी राइटिंग है। इट सीम्स लाइक द स्नैप, इस वाली टेक्निक को मुझे लगा मैं यानी स्नैप शॉट्स थे। पहले ये लगा कि मुझे मुझे वाक़ई ये लगा कि वो हील कर चुके हैं, उसके अम्मा-अब्बा मान चुके हैं, बहुत ही गुडी-गुडी सी एक स्टोरी लगी। लेकिन लेटर ऑन पता चला कि नहीं, वो तो अभी है कोमा में और उसकी तो अपनी भी पता नहीं, शायद मुफ्त सब हो चुका है, नहीं होनी चाहिए। टग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, लाइफ डेथ और ट्रूथ क्या है, पेरेंट्स क्या है, और वुड ही बी कमिंग बैक और नॉट, वो एंटायर चीज। और फिर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बहुत ऑब्वियस है कि सोशल अप्रूवल वाले साइज ना चाहिए, किस पे भरोसा, मतलब ट्रस्ट। इवन पेरेंट्स, वो जिस लड़की को अप्रूवल नहीं दे रहे थे, वो अपने बच्चे की खातिर मन्नत मान रहे हैं आप। हाँ, नहीं, और यहाँ पे वो कहता है कि आई वॉज देन मोर अलाइव देन आई एम नाउ, आई वॉज देयर वेयर नो वन हैज गॉन एंड आई एम बैक फ्रॉम, आई हैड बीन होम। सो उसकी उससे affiliation, उसका कनेक्शन चला से, that was something deeply rooted here. But then it's society doesn't let you live in it. और अगेन द पॉइंट इज कि क्या कबीर वाकई एग्जिस्ट। हाँ, मेरा यही सवाल है कि आके कॉन्शियसनेस जब ट्रैप दे एक ब्रोकन बॉडी में, तो वो तो फिर असल और सारे सिनेरियोज को मिला रहा हो सकता है माइंड। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये भी तो है कि जब कॉन्शियसनेस ट्रैप नहीं होती, तभी तो रियलिटीज सामने आती हैं। सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में रियलिटीज आती हैं। जब आप एक्चुअली अनकॉन्शियस होते हैं ना, तब आप एक्चुअली में कॉन्शियस होते हैं। विविड ड्रीम्स। All right. So in the cocoon, the next story, we have Shiri, right? And Jazib were off to Maldives. He was his honeymoon. Right? Beautiful. And she gets to come across the golden girl. Yes. Who is a golden girl according to you? Tell me. Who's it? Yeah, she is a character. This character. Shiri gets the validation from of her beauty, which I feels as a reader. हम अपनी ज़िंदगी में शायद, मुझे नहीं पता हाउ मच इट इज़ ट्रू, मुझे लगता है कि जो गोल्डन गर्ल शिनी के लिए वो एक करेक्टर थी उसकी लाइफ का, जिससे उसकी जो ट्रू नेचर थी उसको वैलिडेशन, अपनी ट्रू नेचर. यस राइट, ट्रू नेचर को वैलिडेशन मिली। So for me, मुझे यूँ लगा कि ना, जो द गोल्डन गर्ल है वो उसकी वो सेल्फ है, शीरिन की अपनी, जो वो बनना चाहती है। ओह, दैट इज द पॉइंट। हाँ ना, हाँ, मैंने इस तरफ नहीं सोचा, टू बी ऑनेस्ट। कि वो फ्री है, उसके बाल, और वो फुल लाइफ एंजॉय कर रही है, और शीरिन जब उससे उसका इंटरेक्शन क्या दूर दूर से ही हो रहा होता है ना, करीब से होता नहीं है, तो वो ऐसे लगता है कि शी इज फुल ऑफ लाइफ। सो आई थिंक द गोल्डन गर्ल इज शीरी herself, लेकिन वो वर्जन ऑफ शीरी जो उसे लगता है कि वो अगर वो बने तो फिर उसको सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे, और उसकी मदर इन लॉ जो एक इमेज क्रिएट करती है, ठीक है, क्योंकि इसकी डार्क स्किन होती है और भी मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से शी गेट्स टू एयर लॉट। ठीक है, सो ऑब्वियसली जब मदर इन लॉ एक सर्टेन बात करी है तो उसके हस्बैंड के माइंड में भी वो बात है, राइट? तो
गोल्डन गर्ल को वो एक इस तरह का देख रही है अपना कि ओके, मैं ये हूँ, ये मेरी ही एक साइड है, राइट? समथिंग और समबडी शी कैन नॉट गेट और बी, लेकिन वो एक तरह से उसी का पार्ट है। ठीक है। लेकिन बीइंग अ लीडर जब मैं पढ़ी थी, मुझे वाक़ई में लगा कि गोल्डन गर्ल सच में थी। मुझे ये फ़ील हुआ कि लेकिन आपका स्टैंस इस तरह से भी ज़्यादा सपोर्ट हम उसको इस तरह पे सकते हैं बिकॉज़ ऑन डांस फ्लोर दे वर टेकिंग समथिंग बिफोर डांसिंग। अच्छा। येस। तो हो सकता है कि उसकी इमेजिनेशन में उसने वो चीज़ क्रिएट करी। लेकिन फिर अगेन एक इसमें जो होम का क्वेश्चन मेरे नज़दीक होम का क्वेश्चन ये है कि एक सेल्फ अवेयरनेस का लेवल वो क्यों नहीं है कि वी व्हाई वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द वे वी आर। Because the society makes you think you're not good enough and you may be one thing, लेकिन repeatedly आपको कोई कुछ कहेगा, so over time आपके अंदर वो चीज़ चली जाती है कि हाँ ये इस तरह कह रहे हैं तो ऐसा ही है। दिस इज़ द थिंग। लेकिन अगेन मुझे गोल्डन गर्ल रियल लग रही थी। लेकिन यहाँ पे उस शरीका वैसे इससे ज़्यादा कि गोल्डन गर्ल कौन थी, कौन नहीं थी, ज़्यादा जो क्वेश्चन हाईलाइट होने वाला है वो उसकी आइडेंटिटी है कि वो वो उसका जो फीमेल की तरफ मतलब व्हाट शी वाज़ एक्चुअली वो अपने आप से बार-बार क्वेश्चन नहीं कर रही होती। कि why she is attracted to her? या No, it's not that, because we are clearly told that she's not a lesbian. We're clearly told. बट वो अपने आप से बार-बार ये क्वेश्चन कर भी रही होती। Because she is getting attracted to her, लेकिन असल बात यही है। फिर हम स्टोरी के स्टार्ट में वो क्यों बताते हैं कि उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ऐसा है वैसा है, उसको बातें सुन रही। जब हम उस स्टोरी लाइन के साथ आते हैं ना सोफिया, तो फिर हमें यही होता है कि वो गोल्डन गर्ल एग्जैक्टली वो चीज़ है जो उसे लगता है कि अच्छा अगर मैं ये होती या अगर मैं ये हो जाऊं तो फिर मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह जिस तरह ये एक प्रेजेंस सी लगती है ना इन द नेक्स्ट स्टोरी, दैट्स देयर इज अ स्टॉर्म इनसाइड, उसमें निमी के साथ जो एक प्रेजेंस अपेयर होती है। यस, व्हाट इज दैट प्रेजेंस? हु डू यू थिंक इट इज? इज इट हमजा? और स्टोरी आई फील लाइक द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी फॉर की टू क्रैक क्योंकि मैं ये समझ नहीं पाई थी कि एक्चुअली वो साइकोलॉजिकली स्किज़ोफ्रेनिक थी। क्या वो इतनी स्ट्रांग भी हो गई थी क्योंकि वो एंड पे उससे लिटरली मिलने जाती है अपनी मदर से बोल के कि आई एम गोइंग आउट। तो वो इतना स्ट्रांग था उसके बाद नहीं सोबिया, नहीं। वो प्रेजेंस उसको फील होती है और वो प्रेजेंस उसको बताती है कि जब जिस घर में तो पहले रहती थी ना, सॉरी ठीक है, सो फर्स्ट टाइम वो जब 6 ईयर्स की थी तब वो बेर हुआ, लेकिन फिर वो आधे 8-9 ईयर्स बाद वो प्रेजेंस अब उसको फील होती है, अब ठीक है। और वो उससे कहती है कि जब तुम नहीं थे तो मैं डर रही थी, तो अब जब तुम हो तो मैं डर नहीं रही। अब मुझे लगता है कि देयर आर टाइम्स जब हम बहुत अल्लाह से हमारा अच्छा कनेक्शन होता है ना, तो हमें कैसे चीज़ें जल्दी जल्दी फील हो जाती हैं, पता लग जाता है, हर चीज़ बड़ी शार्प हो जाती है, हमारी सेंसेस शार्प हो जाती हैं। इसी तरह मुझे लगता है निमी के साथ होता है। जो उमर है, आई थिंक उमर ही है उसका, उमर वो उसका एक्चुअली एक दूसरे को वो कोट कर रहे हैं, वो एक एक्चुअल बन रहा है उमर अलग है। अच्छा तुझे को मिलने चाह रही है द थिंग लेकिन एंड पे देयर इज अ लाइन एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन आई हैव मेड माई सेल्फ अवेलेबल फॉर उमर। क्या नो, शी इज इट प्रिटी, ये वही वाली चीज है, इसका उसको ब्रेसेस लगे हुए, सारा कुछ। वो सोचती है कि अच्छा ये प्रेजेंस मुझे कह रही है कि मेरे साथ हर वक्त रहेगी, मुझे सेफ रखेगी, कि सेफ रखेगा वो बंदा, ठीक है। हेम करके उन्होंने बताया ना उस प्राइट्स के बारे में। तो जब मिरर में अपने आप को देखती है तो वो कहती है मैं तो प्यारी भी नहीं हूँ, तो फिर उमर मुझे क्यों पसंद करता है? यस क्यों पसंद करता है। तो क्योंकि उसकी अम्मी ने कहा होता है कि जो अच्छी लड़कियां वो अवेलेबल नहीं होती, तो और जो अवेलेबल होती है वो अच्छी लड़कियां नहीं होती हैं, और लड़कों को तो इन सर्टेन पॉइंट सो वो अवेलेबल होती है, इसलिए उमर उसके साथ होता है। लेकिन अब ये से पॉइंट इज आल्सो इन क्वेश्चन है। आप वो प्रेजेंस क्या कहती है? वो कहती है यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल फॉर मी एंड आई वोंट लेट एनी मैन हर्ट यू, बिट्रे यू और टेक एडवांटेज ऑफ यू, से यस बिकॉज यू विल ऑलवेज बी माई। अब यहाँ पे उसे लगता है कि डिस्पाइट माई फ्लॉज एक सर्टेन एंटिटी है जो मुझे
कबूल करेगी, कबूल कर एक्सेप्टेंस वाली चीज है, एक्सेप्ट आपके एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, यस टू कंसिडर somebody yours और टू बी मेड somebody's, वो वाली ना चीज, एक सेंस ऑफ पोजेशन, वो इंसान अपने आप को फीड करता है उस पे। यस सो कहीं ना कहीं आप रूट लेते हैं उसका ना और अपने आप को एट होम फील करते हैं, तो वो एंड पे क्या लाइन आती है, आई वॉज फाइनली सेफ एट होम। यस आई वाज मंथली से तो वैसे भी इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा सेफ इंस्टेड ऑफ वुमन वो इस एंटिटी के साथ ज़्यादा सेफ थी। हाँ, लेकिन ये एंटिटी जरूरी नहीं है कि ये एक एंटिटी ही हो, उसी टाइप के उसकी इनर वर्किंग्स है, यस क्योंकि वो हम उसके बारे में सभी क्यों बताएंगे फिर। यस मैं आपको बताऊं कि ये मेरे माइंड पे जब मैंने स्टोरी का एंड पढ़ लिया था यही कंफ्यूजन मेरे माइंड में क्रिएट हुई थी कि क्या वाकई देयर इज समथिंग लाइक जिन और समथिंग कि था भी कि कोई नहीं था, क्या वो खुद थी। या ये बात है कि वो एट द सेम टाइम वो अपनी ही बॉडी में सेफ भी है बट एट द सेम टाइम वो अपनी ही अपीयरेंस को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी है। तो क्या ये दोनों वर्जन्स उसके अपने अंदर थे कि कभी कोई एक बाहर आ जाता था कभी दूसरा बाहर आ जाता था। बट डिटेल्स द वे इसमें डिटेल्स दी गई है ना कि जो और द सेकंड इज सम आर्मी खरीस दे आर हम तो दिस थिंग तो वो होते हैं मतलब दो वो आपको लगता है कि यार यहाँ पे आबादी नहीं ना होती तो इन दैट सिनेरियो इन माय माइंड आई कैन एक्सपेक्ट कि हाँ नहीं होगा कोई एक्चुअली। okay, so what is the story Empire of Sun about? It's about sleeping a place and getting up another. And this is very much Serena's thing, you know, कि अच्छा due to something, अच्छा वो बंदी ने कोई ड्रिंक पिया, वो सो गई है, वो उठी है तो she sung. Whereas, so ये स्टोरी बहावलपुर और दुबई के अराउंड रिवॉल्व करती है। Yes, yes, Zarish, she got married. Yeah. No. This Zarish Zarish was the name of the male. yeah, husband. Yeah, her husband. I saw it. Yes. Okay, Shriyani. No, we don't have her. No, we don't have the name of the female. Yeah. I. Okay, so the thing is this. Basically, she got married with Zarish that she will be living a life in Dubai and she will continue her writing career basically. That was her dream. Okay, I will go there and I will, he will support me financially and I will be having a good opportunities over there to get my career as a writer. But eventually, opposite happened. She was looking after kids and saving money and as she told in this that I was saving money for milk, saving money for kids diapers and all that stuff. अब फिर क्या होता है कि वो एक डिजास्टर कॉल रिसीव होती है और सब कुछ होता है बट Or the world turns upside down, and by the she returns to यस the last she left. लास्ट पैराग्राफ Yeah. कि ये हिला देने वाला इसलिए था कि जरिश को एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। Mm-hmm. वो मुझे पता है क्या लगा कि वो इस सिनेरियो को सुनने के बाद वो इमेजिन करती है ओके ई गॉट डाई मुझे आज़ादी मिल गई आई विल कंटिन्यू माय राइटिंग करियर एंड ऑल दैट स्टफ क्योंकि मुझे उसके घर वालों ने तो एक्सेप्ट नहीं किया बलूचिस्तान से था। तो वो जो ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना इट इट एक्चुअली मेक्स यू थिंक कि क्या उसने उस डिजास्टर के सुनने की वजह से वाकई ये इमेजिन कर लिया था कि ही इज डेड। मुझे Yeah, it's like, and that is when I knew I was finally home, even if it took a mirage to lead me through the dust storm in my head. Yeah. So the entire लाइन कि उसको डिज़ास्टर कॉल अच्छी रिसीव हुई। अच्छा ज़रिश के तो पाकिस्तान में एग्जिस्टेंस के हमें तो स्टोरी में बताया ही नहीं वो पाकिस्तान कब गया। oh my God. Then we have Zainab's story, right? Another home, another dimension, right? We are told that her mother was absent from the scene, her father was a Basically about the absent parents and their always based on the great Lebanese kids. so absence of a guardian, and this makes us in search of a sense of belonging, and we find Zainab going through certain things. Joe, she ends up finding हाँ, her वो सारा and she committed issues, yeah, if she ends her life, yeah. and one thing more in this story, one thing which we can highlight here, that the mom is not necessarily the
people. It can be a watch. Anything that might see or something. Yeah, as a way, so something. So for me, the idea of home is such a place of safety, a place where you can be yourself, where you can have your guards down, where you don't have to be aware of your surroundings, where you can be anything and everything. That is the idea of home for me. But obviously, people who've had a bad childhood, who've had abusive parents, उनके लिए idea of home सेफ्टी को नहीं करता है, वो कन्फाइनमेंट को कर सकता है, वो किसी डिस्ट्रक्टिव चीज को कर सकता है. सो या अ प्लेस ऑफ ट्रॉमा भी हो सकता है उनके लिए होम. और वही फिर अगेन को ही बात है कि तो होम की डेफिनेशंस है वो पिछली जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ क्या आई हैं. डेफिनेशंस ऑफ होम तो दोनों दोनों फैमिलीज एब्सेंट थी अपने बच्चों के ही. और जब बच्चे चले गए द अदर फैमिली वाज सेविंग मनी. द लेडी द लैंडलॉर्ड जो उनकी लैंडलेडी सॉरी जो उनकी बनती है वहाँ पे, तो उसने अपने बच्चों के लिए अलग घर लिया होता है. लेकिन फिर वही बात कि आपने होम तब क्रिएट किया है कि जब उनकी होम की डेफिनेशन चेंज हो गई. बट आई थिंक दैट व्हेन women get married, Sophia, we take with us a sense of home. Yes, this is But true. There's this home that we come from and then the home that we get to. But we stay in between the lines maybe because we fail to form a balance. और कुछ पीछे की चीजें आ जाती हैं साथ, like you try to live life the way your parents lived, जैसे खाना साथ खाना. So that is your idea of home, जिसमें वर्थ है, फादर आए हैं जी, बच्चे मिल रहे हैं. सो वो एक सर्टन चीज है जो आपका आइडिया ऑफ होम है. सो वो सबके लिए डिफरेंट है. समटाइम्स हम किसी के लिए एज अ होम होते हैं. सो अबाउट द अदर स्टोरीज, आई थिंक उनमें भी जो दो स्टोरीज रही हैं उनमें भी ऐसा ही है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, कांस्टेंट सर्च ऑफ सेल्फ है एंड कांस्टेंट सेल्फ ऑफ होम है, सर्च ऑफ होम है, राइट? तो वी ट्राई टू फाइंड होम ऑन दिस अर्थ इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो होम, क्योंकि हमारी सोल्स तो एक होम से आए हैं ना. yeah, एंड ऑल द टाइम वी लॉन्ग टू बी बैक होम, yeah, राइट? yes, we don't do. एंड इन डूइंग दिस वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी आ जाता है कि ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट स्ट्रगल रहती है. सो हाउ अबाउट वी जस्ट लीव द एंटायर थिंग हियर एंड leave the listeners with a question that have you ever been somebody's home? Have you ever been somebody's home or not, Sobi? You need to think about it. Thank you.